Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Okay, so first practical already we have completed, and for second practical, that is HTML and CSS, we have taken 2 to 3 sessions, and again in our theory lecture we have seen almost all the tags which we can use in a HTML and CSS. Now in your second practical, you have to design and develop any suitable web application or website using HTML and CSS. So for that, if you go in your WTL Google Classroom, here under the upload manual assignment and your work, you will find out first is assignment 1. Only 36 student has uploaded the assignment 1 work, which is whose due is 18 Jan. See, now today is a 2 Feb, 2 week already you have delayed. So your timely completion mark will be less than 2 marks. So out of 20 के बजाय भी out of 18 evaluation होगा जो स्टूडेंट ने अभी तक अपलोड नहीं किया रहेगा वर्क. So practical के 2 marks already आपके चले गए हैं, because you know that our rubrics is W, C, D, B, T, where T is an timely completion. अगर आपने ड्यू डेट के बाद अगर आप अपलोड कर रहे हो तो आपको हर वीक लेट के लिए 1 मार्क माइनस हो जाएगा. Okay, so here what is expected in first practical, you have to install a Tomcat on your machine and put the screenshot of the same in the Word file and upload it. Okay, manual. अगर आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको अलग अलग टॉपिक्स दिखेंगे. So manual के अंदर अगर आप जाओगे, you will find all the manuals already I have uploaded, like assignment number 1. Now second, you have to go with assignment number 2, that is HTML and CSS. You will find out all the manuals here. So in this, you have to write down your manual and upload your handwritten manual with the solved oral question. यानी oral के manual के end में आपको कुछ questions मैंने add किए हैं. जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज मैनुअल का फर्स्ट मैनुअल अगर हम अपलोड करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं, या फिर सेकेंड मैनुअल अगर मैं आपको दिखाती हूँ. So in the second manual or in first manual, you will find out some oral question. Okay, so it is expected in a 2 to 3 lines you have to write down an answer for this oral question apart from writing this manual, and you have to upload that while you are uploading your work. यानी आपको एक zip file बनाना पड़ेगा जिसमें आपका handwritten manual with the answer of your oral question, उसके अलावा जो भी आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया रहेगा उस प्रैक्टिकल का कोड हो गया या फिर आपका आउटपुट हो गया, जो भी स्क्रीनशॉट से वो आपको एक वर्ड फाइल में डाल के उसको नाम देना है. आपका नाम कैसा होना चाहिए? योर रोल नंबर अंडरस्कोर योर नेम अंडरस्कोर असाइनमेंट नंबर 1. अगर 1 के लिए अपलोड कर रहे हो तो 2 है तो 2 के लिए अपलोड करे तो 2. सो यूज अ प्रॉपर फॉर्मेट. उसको आप जिप नहीं भी किया तो भी चलेगा, एक साथ ये 2 अटैचमेंट आपके उसमें अपलोड होने चाहिए, मैनुअल एज वेल एज योर वर्क. Apart from that, I am also attached here and PPT. अगर किसी का जैसे वो असाइनमेंट कैसे परफॉर्म करना अगर वो मिस हो गया तो उसका वीडियो लेक्चर्स तो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है ही, जो हमने यहाँ पे डाले हैं. सो यू विल फाइंड असाइनमेंट ऑल्सो. असाइनमेंट 1 का वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है, अगर किसी ने वो प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया होगा, सो यू कैन जस्ट चेक आउट दैट बाय फाइंडिंग दिस डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स. हर एक का वीडियो लेक्चर हमारे यहाँ पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट पीपीटीज मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, और इसके अलावा देयर इज एन गूगल फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर 4 मार्क्स ऑफ योर वाइवा. सो आपको ये कंप्लीट करना है. ओके, सेम लाइकवाइज फर्स्ट जिन जिन लोगों का बाकी है, the name of the student who have not uploaded is like आकाश, अनिकेत, अनुज, अर्चना, बहुत सारे स्टूडेंट्स है. सी Jayashree, Kajal, Kalyani. See that after 1 week I will close this link. आप कुछ भी अपलोड नहीं कर सकते, ना आपका वर्क आप अपलोड कर पाओगे, ना आप गूगल फॉर्म इसमें सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि गूगल फॉर्म की लिंक जो है वो मैं क्लोज कर दूंगी 1 वीक के बाद फॉर असाइनमेंट 1. सो कंप्लीट इट इफ यू हैव नॉट डन इट. अगेन फॉर असाइनमेंट 2,
असाइनमेंट 2 जो है आज मैंने उसका एक लिंक अपलोड किया है, where it is expected from you have to create any web application. It is purely HTML and CSS build. या आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको कैसा वेबसाइट है जो क्रिएट करना है। ओके, उसका जो कोड रहेगा, अगर आपने 2 या 3 HTML फाइल दिए होंगे, क्योंकि अगर आप हाइपरलिंक्स यूज कर रहे हो तो एक फोल्डर में आपने जितने भी HTML फाइल बनाए होंगे, उसके रिलेटेड जितने भी आपके इमेजेस रहेंगे, CSS की फाइल रहेंगी, ये सब आपको एक फोल्डर में डाल के उसका जिप बना के यहाँ पे अपलोड करना रहेगा विथ इट्स आउटपुट। एक वर्ड फाइल आपको लेना है जिसमें आपको आपकी जो ये वेबसाइट ये रन करेगा, जो आउटपुट आएगा वो अलग से, प्लस आपके .html .css फाइल अलग से। अगर एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बताती हूँ। सपोज हम ले रहे हैं कि फर्स्ट अगर आपने कोई कोड है HTML एंड CSS का, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक पर्टिकुलर कोड मैंने बनाया था, तो जिसमें मेरे पास HTML के 1 2 3 4 5 फाइल्स यहाँ पे है। इसके अलावा 2 इमेजेस थी जो मुझे लग रही थी, तो वो 2 इमेजेस भी मैंने यहाँ पे क्या एक पुट किए। तो जब आप अपलोड करोगे तो आपको ये फोल्डर पूरा जो है जिसमें आपके सब फाइल है, या फिर अगर ये ऐसा वाला कोई आपने अगर फाइल जो है अपने HTML का बनाया है, ओके, तो जिसमें आपका मेन प्रोग्राम जो रहेगा, जिसको क्लिक करके मेरे को रन करके देखना है, अगर आपका कोड तो देखूंगी, तो आपने उसको नाम देना है लाइक मेन पेज या फिर होम पेज, कोई एक फिक्स कर लो, लाइक होम पेज आप नाम दे दो कि जब मैं उसको क्लिक करूँ होम पेज को, तो जो वेबसाइट है आपकी वो रन होनी चाहिए, और उसके बैकग्राउंड में जैसे आपने जितने भी फाइल्स है, जो भी लिंक है, जो लगने वाले हैं, वो आपने यहाँ पे डाल के रखे हुए रहेंगे। ओके, so likewise you have to upload this. Second, you have to upload your manual with your handwritten and oral questions उसके end में लिख के उस दोनों को अपलोड करना है। अगेन द वीडियोस, आपको जितने भी हमारे लेक्चर्स प्रैक्टिकल हुए, तो ऑलमोस्ट ऑल HTML टैग्स हो गए या CSS टैग्स के सब वीडियोस जो है वो अपलोड ऑलरेडी किए हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जस्ट गो ऑन यूट्यूब, वहाँ पे प्लेलिस्ट होता है, अगर आप लाइक जस्ट चेक इट विथ माय नेम भावना खिमसरा। ओके, जैसे आप जाओगे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो डालूं तो आपको समझ में आए कि डाला हुआ है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको है ना ऑल वीडियोस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, लेकिन आप प्ले लिस्ट पे क्लिक करो। प्ले लिस्ट इज अ वेरी गुड थिंग, जिसमें अगर आप वेब टेक्नोलॉजी लैब के रिलेटेड या वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियोस है, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में जितने वीडियोस डाले हुए हैं फ्रॉम लेक्चर 1 से लेके अब तक, तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे विद प्रॉपर टॉपिक। जैसे अगर आपको हेड टैग सर्च करना है, या फिर फॉन्ट टैग सर्च करना है, लीस्ट टैग, टेबल टैग और सम इमोजी टैग लाइकवाइज, तो आप यहाँ से जाके क्लिक करके उसको सर्च कर सकते हो। उसके अलावा पीपीटीज मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, एंड जो गूगल फॉर्म है ये अभी सिर्फ क्रिएट किया, उसमें क्वेश्चंस डालना बाकी है। कल तक ये क्वेश्चंस ऐड हो जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये आपको असाइनमेंट 2 के लिए करना है। अभी आपको अगर कुछ क्वेरीज है इसके रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कि एग्जैक्टली आपको अगर नहीं समझ में आए कि आपको क्या वर्क करना है, तो आप पूछ सकते हो इसमें। तो डिस्कशन इज ओपन टू यू, यू कैन आस्क। आपको समझ में आया आपको एग्जैक्टली क्या क्या करना है? देखो, हम लोग जो एग्जाम में जो चीट्स या फिर जो असाइनमेंट जो आपको करने के लिए बोलते हैं HTML के लिए, तो टेबल रिलेटेड असाइनमेंट होता है जिसमें आपको टाइम टेबल बनाना है, या फिर आपका खुद का एक रिज्यूम आपको बनाना है, या फिर फ्रेम टैग लेके और आपको एक छोटा वेबसाइट बनाना है। तो आप जितने टैग्स हमने सीखे, जैसे गूगल फॉर्म, सॉरी HTML फॉर्म, ये आपका आना ही चाहिए। आप जो वेबसाइट बना रहे हो उसमें आप फॉर्म है, टेबल टैग है, फॉन्ट टैग है, ये सबको यूज करके आप उसका जो वेबसाइट है वो बनाओ। जैसे मैं हर साल एक्चुअली लोगों को ये ऐसे टाइप का वेबसाइट बनाने के लिए बोलती हूँ जिसमें 3 फ्रेम्स जो है
कि 3 अलग अलग फ्रेम्स में आपका वेबसाइट डिवाइड होना चाहिए, जिसमें कुछ हाइपरलिंक के टैग, इमेज के टैग्स, देन टेबल टैग, यहाँ पे हमने जैसे लीस्ट टैग यूज किया है, टेबल टैग यूज किया है, यहाँ पे हमने गूगल फॉर्म टैग यूज किया है। तो ये सब कंबाइन करके आप लोग एक आधा वेबसाइट बना सकते हो। या फिर एग्जाम्पल हो, जैसे हमको लग रहा है कि आप कार का शौकीन रहते हैं काफी सारे स्टूडेंट, तो सपोज कोई एक कार ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कौन सी कार लेने की, अगर जैसे उसके रिलेटेड कोई अगर वेबसाइट है, तो अगर जैसे आप एग्जांपल लो, वो वेबसाइट आपने ओपन किया, तो जस्ट चेकआउट की कोई वेबसाइट अगर है, तो अगर आपको कोई खुद की जैसे वेबसाइट डिजाइन करनी है, तो जैसे यहाँ पे उन्होंने इमेज टैग का यूज किया हुआ है बहुत सारा। आफ्टर इमेज टैग सपोज हमने यहाँ पे कोई बटन्स, यहाँ पे उन्होंने HTML फॉर्म के बटन्स यूज किए हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सर्विसेज के ऊपर, तो जैसे अगेन दिस इज एन फॉर्म टैग में जैसे इन्होंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज किया हुआ है, बटन का यूज किया हुआ है। अगेन इट इज एन गूगल फॉर्म वेर दे हैव यूज द डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे ये लिस्ट टैग है, जो लिस्ट टैग यूज किया विद हाइपरलिंक, जैसे जो जिस पे क्लिक करेंगे तो उसी वेबसाइट के दूसरे पार्ट में, जैसे मैंने बताया था कि 2 फ्रेम में डिवाइड किया हो, जिस पे आप क्लिक करोगे वो डेटा आपको राइट हैंड साइड में दिखना चाहिए। सो चेक आउट सम ऑफ द वेबसाइट एंड फर्स्ट प्रिपेयर योर डिजाइन। आप एक पेज ले लो बुक का, उसमें आप पहले लिखो कि आपको किसके रिलेटेड वेबसाइट बनाना है। आपको एजुकेशन के रिलेटेड बनाना है, किसी सुपर शॉपी के रिलेटेड बनाना है, आपके किसी हॉबी के रिलेटेड बनाना है, या फिर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बनाना है, आपकी कार के रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड। अगर आप केक बनाने के शौकीन हो तो आपको लगता है उसके रिलेटेड आपको कोई वेबसाइट बनाना है। सो फाइंड आउट योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। आप एक टेंटेटिवली पेन और पेपर लो, उस पर पूरा डिजाइन बना लो कि आप टेबल टैग किसके लिए यूज करोगे, इमेज टैग कब यूज करोगे, फॉर्म टैग जैसे कॉन्टेक्ट अस के लिए या फीडबैक के लिए। जनरली बहुत लोग गूगल फॉर्म जो हमारा HTML के फॉर्म के टैग्स होते हैं वो यूज करते हैं। या फिर आपको लगता है कि कैलकुलेटर का डिजाइन बनाना, एनीथिंग यू जस्ट लाइक आप डिजाइन जो है वो ये करो। और आप जो भी वेबसाइट भी आप जैसे बनाओगे, अभी ये वेबसाइट तो आप लॉन्च नहीं करने वाले हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, .html फाइल बना के वो आपके मशीन पे रन करके उसके स्क्रीनशॉट आपको एक वर्ड फाइल में लेके आपके जितने भी कोड है वो कोड प्लस आपका आउटपुट के स्क्रीनशॉट ये आपको एक फोल्डर में डाल के और आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ओके, और अपलोड करते वक्त आप आपका रोल नंबर नेम तो दो, प्लस आपने किसके रिलेटेड वो वेबसाइट बनाई है, जैसे कार के रिलेटेड है या फिर एजुकेशन के रिलेटेड है, तो आप शॉर्ट में एक उसका नाम दो। प्लस अपलोड करते वक्त कौन सी फाइल पे क्लिक करने के बाद मुझे आपकी वेबसाइट पूरी एक साथ रन करने को मिलेगी, तो वो पेज का भी नाम आप क्या कर सकते हो, वहां पे पुट कर सकते हो। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो स्टूडेंट्स फ्रॉम माय साइड फॉर सेकेंड प्रैक्टिकल, so you can ask. Okay, if you don't have any of the queries, so we can just end with our second practical। और आप लोग वर्क स्टार्ट कर दो, अभी जो टाइम है उसमें आप चैट में, हो सकता है चैट में अगर आपने डाला नहीं होगा, सो पुट योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स एवरी स्टूडेंट, क्योंकि चैट में मुझे बहुत कम चैट्स दिख रहे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्रेजेंट है वो 49 दिख रहे हैं, और चैट में हार्डली 20 से 30 स्टूडेंट ने ही अटेंडेंस दिया है। So give your attendance in the chat box. Okay, स्वाति आप बताओ या फिर रूपाली आप बताओ, आपको कौन से एरिया में इंटरेस्ट है, आप किस में आप वेबसाइट बनाना पसंद करोगे इन द फॉर द HTML?
Yes, Swati Pawar. राहुल. मैम राहुल. गेम्स में बनाऊंगा मैं. यस, किसमें? टाइप्स गेम्स ऑफ के रिलेटेड. टाइप्स ऑफ गेम्स वगैरह डालूंगा. वाओ, गुड वन, वेरी गुड. सौरभ. मैम बुक्स के या रिलेटेड. यस स्वाति. बुक्स के रिलेटेड HTML पेज, वेब पेज. हेलो. हेलो मैम, बुक्स के रिलेटेड. Actually, your voice is not audible to me, Swati. So you can put in the chat box, Swati. Okay, Rohan. Rohan Kelle. Mamta. Mamta Jain. मैम एजुकेशन रिलेटेड. ओके, वेरी गुड. एजुकेशन रिलेटेड, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड बनाओगे या फिर कौन से टाइप के एजुकेशन होते हैं आफ्टर 10 12, उसका इंफॉर्मेशन के रिलेटेड बनाना पसंद करोगे? मैम इंफॉर्मेशन रिलेटेड. Okay, so after 12th, what are the different courses and what are the different colleges available for that criteria? Very good, very good. Okay, Pranjal Sharma. मैम म्यूजिक के रिलेटेड. म्यूजिक के रिलेटेड, सो इट्स म्यूजिक के वीडियोस आप डालोगे या फिर क्या क्या रहेगा, कैसा सोचा है आपने? टाइप्स म्यूजिक के कौन से होते हैं, क्लासिकल, हिप हॉप वगैरह. ओके, तो आप इसमें इमेज के साथ वीडियो भी अगर आप यूज करते हो, वीडियो टैग, तो वो भी अच्छा रहेगा कि जो भी म्यूजिक है अगर आप क्लिक करो तो यूट्यूब का कोई एक वीडियो जो है उस म्यूजिक के रिलेटेड वो आप प्ले कर सकते हो इसमें. ओके मैम. दैट इज अगेन अ गुड वन. प्रतीक्षा गायके. Yes, ma'am. Yes, what do you have thought for a website? Ma'am, mobile phones के related. Mobile phone के related, so it will be a informative again with price Yes. and images and its features. Features. Yes. ओके, सो आप उसका प्राइस देना, आप उसका इमेज डालना. जब आप फीचर्स डालोगे तो उसके लिए टेबल टैग यूज कर सकते हो, प्लस एक फीडबैक का फॉर्म लो कि मतलब जो भी जिसने भी वेबसाइट को विजिट किया उसको कौन से मोबाइल लेने में इंटरेस्ट है, तो आपका फॉर्म टैग जो रहेगा HTML के वो भी यूज रहेगा जिसमें आप उसका नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल ID और उसको कौन सा मोबाइल है जिसमें जो लेने में उसको इंटरेस्ट है, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट भी आप उसमें यूज कर सकते हो. Yes, ma'am. Yeah. Okay. Brunal Munoz. Hello. Yes. Product purchasing and selling related. Product purchasing and selling related. Very good. So it require लेकिन इसमें सिर्फ HTML यूज होगा नहीं. HTML इज अ स्टैटिक वेबसाइट है ना, आप सिर्फ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल सेलिंग मतलब ई-कॉमर्स जैसा अगर आप सोच रहे हो तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, थोड़ा जावास्क्रिप्ट या फिर ऐसी चीजें थोड़ी ऐड करनी पड़ेगी उसमें. सो अगेन गुड वन. इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जो आपने सोचा है, जब हम प्रैक्टिकल नंबर 3 4 5 आगे आगे जाएंगे तो जैसे जैसे आप सीखोगे आप आपके उस वेबसाइट में वो फीचर्स क्या कर सकते हो, बाद में धीरे धीरे ऐड कर सकते हो. वेरी गुड, गुड वन. Yeah, thank you. या संदेश बगारिया. संदेश. यस मैम. या तो आप किस चीज के रिलेटेड पसंद करोगे वेबसाइट क्रिएट करना? कुछ सोचा है?
Okay, you are thinking. Okay. Akash Vyavare. Yes, ma'am. Hmm. In which topic you are interested? नहीं ma'am. Huh? Yes? Not yet decided? Okay. मैम Yeah. Yes. मैम ये जो टॉपिक्स आप मतलब फाइनल तक लेके जाना है क्या ये सब? इट इज डिपेंड ऑन यू। देखो अभी तो ये मैं सिर्फ सेकेंड असाइनमेंट के रिलेटेड सोच रही हूँ। अभी कैसा ही आपका एकदम स्टार्टिंग है, तो जरूरी नहीं कि अभी आप जो सोच रहे हो ये आप एंड तक सब जन लेके जाएंगे। अगर आपका बहुत फर्म है कि यही टॉपिक आप एज अ प्रोजेक्ट तक लेके जाना चाहते हो, अगेन वेल एंड गुड। अगर आपका टॉपिक अभी तक, कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि अभी जस्ट लर्निंग है, HTML नहीं इतना आइडिया है, पहली बार सीख रहे, काफी लोग आफ्टर डिप्लोमा से आते हैं, सो दे आर हैविंग अ वेरी गुड आइडिया. So they can take a topic which they can go till up to like database connectivity and actual launching of that website as a, मतलब आपका वेबसाइट लॉन्चिंग तक आप सोच सकते हो, मतलब उसको होस्ट करने तक के लिए भी सोच सकते हो जो आप अभी टॉपिक ले रहे हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है, किसी को लगता है कि इसको अलग टॉपिक लेके भी आपको एज अ प्रोजेक्ट आप एंड में बनाना चाहते हो, तो इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, डिपेंड ऑन यू। ओके यस मैम। ओके ओके गौरव, गौरव चौहान। श्रेया, श्रेया अलीजाड। श्रेया, मैम यस मैम शॉपिंग के रिलेटेड हो सकता है क्या? यस डेफिनेटली हो सकता है। भी लास्ट टाइम, एक्चुअली लास्ट टू लास्ट टाइम एक ग्रुप था जिन्होंने पूरा एक शॉपी के रिलेटेड बनाया था, बहुत प्रोफेशनल बनाया था। मीन्स देखो बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स भी मिलते हैं, लेकिन अभी मैं वो सजेस्ट नहीं करूंगी टेम्पलेट, जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे तभी। अभी तो आपको सिर्फ HTML के कोडिंग का प्रैक्टिस करना है, इसके लिए अभी मैं टेम्पलेट नहीं सजेस्ट करूंगी, वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे यूज करना है। आप शॉपिंग के रिलेटेड भी बना सकते हो। तो कौन से टाइप का शॉपिंग, यानी आप क्लोथ्स के रिलेटेड, ज्वेलरी रिलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ शॉपिंग प्रोडक्ट के लिए आप सोच रहे हो? मैम क्लोथ्स के रिलेटेड। हाँ यस यू कैन। तो जिसमें आप अलग अलग सेक्शन बना सकते हो, किड्स, यंगस्टर्स, बॉयज, गर्ल्स। उसमें भी आप जैसे बहुत, आप देखो अमेजोन पे उन्होंने कितने सारे ऐसे कैटेगरीज या फिल्टर्स बनाते हैं, तो आप ऐसा पूरा कैटेगरी फिल्टर वगैरह भी यूज कर सकते हो। इमेजेस डाल सकते हो, जो भी आप क्लोथ डालना चाहते हो, तो इमेज के नीचे उसका प्राइस आना चाहिए और उसका साइजेस कौन से अवेलेबल है। तो एक इन शॉर्ट आप वैसा बना सकते हो। वेरी गुड वन। देखो अभी जो आप वेबसाइट बना रहे हो ना सब जन, ट्राई टू फाइंड कि जितने टैग्स हमने सीखे, हेडिंग टैग, फॉन्ट टैग, टेबल टैग, देन HTML फॉर्म रिलेटेड टैग, वीडियो टैग, कुछ इमोजीज के टैग्स है, देन लिस्ट टैग है, फ्रेम टैग है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टैग यूज करके आप कितना अच्छा बना सकते हो वो देखो। उसको बाद में इंटरेक्टिव कैसे बनाना है, उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट, PHP हम कैसे ऐड करना है, अभी हम नेक्स्ट जैसे यूनिट 2 यूनिट 3 की तरफ जाएंगे। अब यूनिट 2 हमारा स्टार्ट हो जाएंगे 1 और 2 डे में, तो तब तक हम HTML पूरा खत्म कर देंगे। सेकेंड यूनिट में आप पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे, ओके, जिसमें हम कुछ एग्जीक्यूशन कैसे करवाना है। जैसे अगर कैलकुलेटर आपने बनाया तो एक्चुअल वो एग्जीक्यूशन टास्क कैसे परफॉर्म करना है। लॉगिन फॉर्म में अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड गलत डाला है तो मैसेज कैसे यूजर को रन टाइम पे प्रोवाइड करना है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कैसे जाना है, ये सब चीजें हम वहां पे सीखने वाले हैं। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे आपसे, हाँ यस मैम हम लाइव स्कोर बताने वाले वेबसाइट बना सकते हैं क्या?
बता सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बूटस्ट्रैप लगता है एक्चुअली, या फिर एंगुलर जेएस यू हैव टू यूज, या फिर अजैक्स यू हैव टू यूज। सिर्फ HTML से नहीं बनता है। HTML इज अ वेरी स्टैटिक वेबसाइट ओनली फॉर डिजाइनिंग पर्पज। जब आपको रन टाइम कुछ डायनामिक कंटेंट ऐड करने, तो डायनामिक कंटेंट ऐड करने के लिए आपका इधर PHP या फिर अजैक्स या फिर एंगुलर जेएस, जिससे कुछ डेटा जो है आपको लाइव अपडेट करने के लिए वो चीजें यूज होती है। तो ये हम आगे जैसे जैसे यूनिट पढ़ेंगे ना, तो आपको और आइडिया आएगा। तो आप यही जो वेबसाइट आप बनाई है ना सेकेंड प्रैक्टिकल के लिए, आप उसको धीरे धीरे और रिफाइन करते जाओगे जैसे जैसे आपको समझ में आएगा। तो ओके, यस। और Okay, किसी को ma'am. कुछ पूछना है? मैम अबाउट सीड्स, विच शीट? शीट ने मैम, सीड बी मैम, हम पेड़ के लगाते हैं you बी। are okay making a website related to seed, very good, so it is an agriculture base और बहुत अच्छा है। और आप इसको है ना, मैं जैसे और एक बताती हूँ। देखो अभी आप लोग सेमिनार टॉपिक्स भी लेने वाले हो ना, आप लोगों के सेमिनार टॉपिक्स आपके चलने वाले। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लोग जैसे सेमिनार में कुछ IoT रिलेटेड ले रहे हो या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स के लिए रिलेटेड ले रहे हो, तो आप उस सेमिनार टॉपिक, आप जिस टॉपिक के लिए ले रहे हो, आप उस टॉपिक के रिलेटेड भी आप वेबसाइट बना सकते हो। जैसे अगर किसी ने बोला कि एग्रीकल्चर में कुछ IoT का यूज करके और उसको एडवांसमेंट के लिए आप लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ सेमिनार टॉपिक ले रहे हो, तो आप वो टॉपिक के रिलेटेड भी आपका वेबसाइट बना सकते हो। ऐसे भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हो, उसका इमेजेस कलेक्ट करने वाले हो, सो यू कैन मेक दैट थिंग। तो आपकी दो चीजें पैरेलली आपका काम भी हो जाएगा। और जब आप सेमिनार का प्रेजेंटेशन दोगे, तो आप ये भी बता सकते हो कि मैंने जो भी प्रेजेंटेशन मतलब जो भी डेटा कलेक्ट किया, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के फॉर्म में नहीं, प्लस मैंने उसका क्या बनाया, वेबसाइट भी बनाया है। तो आप ये ऐसा कॉम्बिनेशन भी दिखा सकते हो। दैट विल बी रियली अ गुड थिंग। तो आप वो भी देख सकते हो। जैसे अगर किसी ने बोला है कि मैं कार के रिलेटेड अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे कार में क्या एडवांसमेंट है जो कंप्यूटर्स के रिलेटेड हो रही है, तो अगर आपका सेमिनार का टॉपिक उससे अगर थोड़ा बहुत अगर आप लिंक करके आप दिखा सकते हो। जो गेम्स के रिलेटेड, किसी ने बोला कि गेम्स के रिलेटेड बना रहे हो, तो गेम्स के रिलेटेड अभी आपको पता होगा कि ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, ये एक टॉपिक है जो सबसे बूमिंग में है। और आपको शायद ऑनर में भी एक 5th नंबर का टॉपिक है जो आपको आया हुआ है। सो इट इज अ वेरी गुड टॉपिक, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी, जिसमें आजकल के जो 3D गेम्स होते हैं वो डिजाइन करने के लिए यूज होता है। तो आप वो टॉपिक को भी टच करके और आप गेम्स का ऐसा मर्ज कर सकते हो। यानी आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का टच प्लस आपके हॉबी का टच, या फिर आपके सेमिनार टॉपिक का टच प्लस HTML का टच, ऐसे कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हो। यानी आपका ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, दोनों चीजें आप साथ में भी कर सकते हो। दैट इज अगेन अ गुड वन इफ यू डू दैट, नॉट अ कंपल्सरी, जस्ट माय सजेशन टू यू। यस, आनंद चतुर्मथा। Yes, ma'am. What you have decided? Ma'am, cricket से related. क्रिकेट से रिलेटेड, ओके। तो अगेन क्रिकेट से रिलेटेड, लेकिन मींस व्हाट? वैसे मतलब मैम लाइव स्कोर्स। ओके। और अब तक के जैसे अगर ये भी दिखा सकते हो ना कि जैसे अगर कितने इंडियन जो क्रिकेटर है, जो फर्स्ट क्रिकेटर कौन था, और अब तक अभी तक के जितने भी क्रिकेटर आए हैं उन सबका लिस्ट दिखा सकते हो उनके फोटो के साथ, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टूवर्ड्स, उन्होंने कितने टेस्ट सीरीज कितने खेले हैं, या फिर मतलब उसका एक जस्ट अ सिंपल बायोग्राफी, मतलब हर एक का नाम, जिसपे भी मैं लिंक क्लिक करूंगी तो बैक में उसका थोड़ा इंफॉर्मेशन जैसे आना चाहिए, वो भी आप कर सकते हो उसमें। लाइव यस मैम, स्कोर आज के तक का अलावा रिकॉर्ड। या वो आप ऐड कर सकते हो उसमें। यस, कार्तिक संत। मैम फर्नीचर से रिलेटेड। ओके, फर्नीचर से रिलेटेड कर सकते हो। अगेन अ गुड वन, फर्नीचर के रिलेटेड। अभी जैसे मैंने बताया ना, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, तो अभी काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसमें अगर आप कोई फर्नीचर सिलेक्ट करते हो, तो आपके एक्चुअल अगर आप घर का फोटो डालते हो जो कॉर्नर में आपको रखना है, तो वो चेयर उस कॉर्नर पे कैसे फिट होगी, वो साइज में वो कैसे दिखेगी, ऐसे वाले भी बहुत सारे वेबसाइट है जो आपको वो रियलिटी जैसा वो दिखता है।
तो जैसे आप वेबसाइट भले आप सिंपल बनाओ, लेकिन ऐसा कुछ टच हम डाल सकते हैं क्या? तो ये भी थोड़ा बहुत आप मतलब उसका पढ़ के और आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके ना, गुड वन। यस, विरती, विरती है या वृद्धि है? नंबर 77। Virti ma'am. Yeah, it's Virti. Okay. What is your opinion? Not decided ma'am. Okay, you have not decided. Okay. Ashwini, Ashwini Shevai. यस मैम। Yeah. यस मैम। आप बोलो। मैम एक्चुअली हमारा फैमिली बिजनेस है ऑनियन मर्चेंट का, तो उसके रिलेटेड वेबसाइट बनाऊंगी मैं ऑनलाइन Fantastic. सेलिंग के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। आई ऑल्सो सजेस्ट कि जिनका खुद का घर का अगर आपका बिजनेस है और आपके बिजनेस के रिलेटेड अगर अभी तक वेबसाइट नहीं है, तो यू शुड डू दैट। आपने वो करना ही चाहिए, ताकि एक आप एज ए इंजीनियर आपके फैमिली को एक हेल्प होना ही चाहिए। भले आप कस्टमर उसमें परचेस करे नहीं करे, वो आगे की बात है, क्योंकि परचेसिंग करना तो ई कॉमर्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें लगती है, डेटाबेस लगता है, बट एटलीस्ट इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट आप डाल ही सकते हो, जिसमें कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, कौन से प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के इमेजेस, तो एक थोड़ा एडवर्टाइजमेंट आप डाल सकते हो। डेफिनेटली योर फादर एंड मदर विल लव टू सी दैट यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स देयर वर्क। अगर आपके फादर या मदर कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो कोई कहीं पे लाइक जॉब करते हैं, तो आप उनका एक प्रोफाइल बना के दे सकते हो। जैसे देखो, अभी मैंने अगर मेरा खुद का ब्लॉग बनाया, ओके, आई एम इन अ सर्विस, लेकिन जैसे अगर अबाउट मी पे अगर आप जैसे क्लिक किया है, तो मैंने जैसे मेरे कुछ भी अचीवमेंट के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ये सब लीज टैग है जो यूज किए हुए हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में। ओके, तो आप कुछ इमेजेस डाल के, और कुछ अगर ऐसा कुछ आप आपके जो जॉब में है आपके मदर फादर, उनको उनका अगर ऐसा एक वेबसाइट बना के ब्लॉग से बोलो या कैसे थोड़ा सा एक, लेकिन HTML बैकग्राउंड यूज करके आप ऐसा कुछ उनके लिए बना के दोगे, सो दैट इज अगेन अ गुड वन। सी दैट यू आर whatever you are studying, it should be somewhere benefit to your family through your technical knowledge. Yes, any other? Pamul Mishra. मैम जीके से रिलेटेड जनरल नॉलेज। ओके, तो जीके से रिलेटेड क्या? जीके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या जीके से रिलेटेड अलग अलग मतलब हाइपरलिंक एग्जाम्स? डाल क्वेश्चन। हाँ हाँ मैम, क्वेश्चंस वगैरह ऐसा करूंगा उसमें हाइपरलिंक करके, फिर क्वेश्चंस में हम क्लिक करेंगे तो उसके आंसर्स खुल जाएंगे मैम, न्यू टैब वगैरह। ओके ओके ओके, इट्स लाइक MCQ बेस। वेरी Yes, वेरी गुड, वेरी। इसके अलावा आप थोड़ा सा ये भी डाल सकते हो कि कौन से टाइप के, जैसे अगर एज ग्रुप अगर ऐसा 5 to 10 इयर्स का है, तो नहीं पता रहता है पेरेंट्स को कि जीके के रिलेटेड कौन से एग्जाम्स होते हैं जो उनके बच्चे दे सकते हैं। या फिर अगर 12 एंड अबो है, तो जैसे बहुत सारे थे, बोर्मिटा क्विज कॉन्टेस्ट होता है, या कितने अलग अलग कॉन्टेस्ट होते हैं जो अच्छे लेवल पे होते हैं, तो उसका भी एक इंफॉर्मेशन आप थोड़ा सा उसमें डाल सकते हो कि इंफॉर्मेशन एज वेल एज उसके रिलेटेड क्विज। तो ये दोनों चीजें भी आप ऐड करोगे तो दैट इज अगेन अ गुड वन। यस मैम। या सिद्धांत, सिद्धांत पहाड़े। यस मैम। यस, आपने कुछ सोचा है फॉर लाइक व्हिच टॉपिक यू आर इंटरेस्टेड? नो मैम। ओके, तो आप जो सेमिनार के लिए आप टॉपिक सोच रहे हो, तो उसके रिलेटेड भी आप वेबसाइट बनाने का सोचो, सो दैट इज अगेन अ गुड वन। बहुत सारे लोगों ने खुद के ऊपर एक वेबसाइट बनाया था लास्ट टाइम, जैसे कि खुद के बारे में इंफॉर्मेशन। तो जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिज्यूम, हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम, सो दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ देयर वेबसाइट, जिसमें उन्होंने उनका रिज्यूम प्लस उनके जितने अवार्ड्स, अचीवमेंट्स, उसके फोटोज, उनके किए हुए लाइक इंटर्नशिप्स, उसके सर्टिफिकेट, उन्होंने किए हुए अलग अलग ट्रेनिंग्स, उसके सर्टिफिकेट, हर चीज उन्होंने वेबसाइट में डाला था। तो ये रिज्यूम, आपका पूरा रिज्यूम आप इसमें बना सकते हो, सो दैट इज अगेन अ गुड वन। तो आपका एक रिज्यूम पूरा रेडी हो जाता है। मतलब एक रिज्यूम, जैसे अगर मैं एग्जांपल बताती हूँ कि यहाँ पे सिंपल रिज्यूम है क्या यहाँ पे?
देखो जैसे भी यहाँ पे सिंपल वाला ये रिज्यूम जो है वो बनाया था, तो अगर जैसे यहाँ पे अगर मैंने HSC और SSC के मार्क्स डाल दिए, तो आप यहाँ पे हाइपरलिंक डाल दो। हाइपरलिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो वो आपका मार्कशीट ओपन हो जाना चाहिए। अगर आपने जैसे यहाँ पे लैंग्वेजेस कुछ डाली है कि जैसे आप जावा में मास्टर हो, तो आपने जावा के रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशन किया होगा, तो यहाँ पे हाइपरलिंक डाल दो। तो जैसे ही क्लिक होगा, या फिर अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो ट्रेनिंग के रिलेटेड फोटोज, सर्टिफिकेशन, ये अलग इसमें ये सब ओपन हो जाना चाहिए। अगर आपने हॉबीज डाला है ट्रैवलिंग, तो अब तक आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया और क्या चीज एक्सप्लोर की हुई है। अगर ड्राइंग है तो आपने कौन से टाइप की ड्राइंग, कौन से कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है क्या। तो आप आपका रिज्यूम ऐसे बनाओ कि उसके हर चीज पे अगर आप हाइपरलिंक डालो तो उसका जो डिटेल्स है, जो आप फाइल लेके जाते हो और उन्होंने बोला कि अरे ये सर्टिफिकेट दिखाओ, तो आप इधर उधर जो ओपन करते हो तो यहाँ पे ही क्लिक करके वो पर्टिकुलर सामने वाला जो बंदा रहेगा वो आपका पूरा रिज्यूम देख सकता है। तो ये भी चीज आप इसमें कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज अगेन अ गुड वन। इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो कि जब आप बी में जाओगे तो आपका बी का प्रोजेक्ट का डिटेल, सेमिनार का रिपोर्ट आप इसमें उसका लिंक डाल के रख सकते हो। तो हर चीज आगे भी जैसे जैसे आप जॉब में जाओगे, जैसे जैसे एडवांसमेंट होते जाएंगे आपके, आप ये सब चीजें ऐड करो, उसका प्रूफ उसके बैक में अटैच करते चलो। सो दैट इज अगेन अ गुड वन। So I hope everyone has like understood कि कैसे आपको टॉपिक फाइंड आउट करना है, कैसे डिजाइनिंग करना है। बहुत अच्छे से डिजाइन करो, पेपर वर्क करो, and any help required from my side while you are designing, so you can anytime ask me on a WhatsApp or you can call me। अगर ऐसा लग रहा है कि WhatsApp से नहीं समझ में आ रहा है, you can also call me in the like college hours after 3 PM and we can have a discussion on that. Okay, so from next week we will start with our third practical which is based on our XML। तो पूरा 1 week है, 1 week में आप ट्राई करो आपकी जो वेबसाइट है वो आप जितना भी डिजाइन कर सकते हो, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिकल में आप शॉर्ट में अगर आपकी वेबसाइट जो आपने डिजाइन की आप रन करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ डाउट्स है तो हम वहां पे सॉल्व भी कर सकते हैं। So everyone has given the attendance in a chat box। क्योंकि मैं अभी एंड कर रही हूँ मीटिंग, अगर किसी का रह गया होगा तो जस्ट गिव योर अटेंडेंस इन द चैट बॉक्स।